Welcome back. You're watching NewsX with me, Malvika, and the top story that we're looking at this point in time is, of course, the major fire incident that took place at a restaurant in North Goa's Arpora, where 25 people have lost their lives. We have visuals from the spot. The fire took place at a nightclub called Birch by Romeo Lane. The deceased are primarily club employees, while officials suspect a cylinder blast to have triggered the blaze, with most people succumbing to suffocation. Now, I have this visual sequence over here with me, which takes you through the entire incident that occurred and which tells you how exactly this blaze was triggered and what was the result after that. So, firstly, of course, this visual on your screen shows you the massive fire that ravaged the club, and you can see the intensity of the blaze over here. You can see the entire establishment being engulfed by the flames that are reportedly being told to be due to a cylinder blast, and you can see the intensity of the fire over here. Now, this shows you the interior of the club, and this is the moment where we see this fire beginning to engulf the establishment, and you can see these people, these are the performers at the club. They seem to be noticing that this fire has broken out, and this in fact captures the exact moment where this fire began to ravage the club, and people inside, these are the performers that were performing at the moment inside the club. You can see over here she was putting on a performance, and this person over here seems to have noticed the blaze, after which others also turned to look at this spot. This is where the fire seems to be coming into the inside of the club. It reportedly occurred in the kitchen area, and this seems to be the spot from where it started entering the club interior as well. Now, you can see several alcohol cans over here. These burst due to the fire. Now, in such an incident, we've seen some previous instances as well in an area like a nightclub, where you already have many flammable stuff, and especially alcohol cans, which are highly inflammable. That also intensifies the blaze, and that seems to be the case over here as well, where several alcohol cans burst due to the fire, and that probably contributed to the blaze as well. Now, this was the nightclub. You can see that it was surrounded by water. This was obviously the picture that we have from before this tragedy that has taken place, and you can see that not just the inside but outside this entire area, this entire nightclub was surrounded by a water body. Now, that is what we're showing you over here. We have it located on a map as well, and again you can see this is the club. This is Birch by Romeo Lane in the Arpora area of Goa, of course, and the entire establishment, the entire thing is surrounded by water. There are several residential properties nearby as well, and we saw many eyewitnesses from these nearby areas, nearby homes, nearby restaurant and other establishments as well. They also reported to have heard a very loud explosion, which sort of lines up with the fact that it is being said to be a cylinder blast. And you can see those properties nearby, they all heard the sound of the explosion, and these are the places from where this blaze, all the videos, all the pictures that we've been seeing, these are the places from where the videos have been captured, because this entire establishment, you can see, is surrounded by a water body. Now, more visuals from inside the club before the fire tragedy, and you can see all of the interior to be wooden, wooden furnishings that were used throughout the establishment, and that also contributed to the intensity of the fire, that also contributed to the blaze intensifying. And these visuals from inside sort of give you a glimpse of why that might have happened. Now, again another picture of the blaze. You can see the intensity of the flames, and we've seen alcohol cans, we've seen wooden furnishings. We've seen all of that contribute to this massive intensity fire that took place, and most of the reports suggest that this was a cylinder blast that caused this fire. Now, these are visuals that we also have from after the incident occurred, when police, fire personnel and emergency services were all rushed to the spot, and the injured were taken to the hospital. All the bodies, as per the DGP,
All the bodies have now been recovered. Meanwhile, all injured have been taken to the hospital, and as per information that we have, more than 10 to 15 people are reported to be currently undergoing treatment after this tragedy took place, and some of them are reported to be in a critical condition. So, this is the entire sequence that we have taken you through, the entire cause behind this massive tragedy. Let's in fact shift our focus to some breaking updates that are coming in with regards to this story. A local has made a statement reporting his account of the incident. He says, and I quote, "When I was heading home, I heard an explosion. Later, we saw ambulances arriving at the spot. When we reached the location, we saw that the incident had already occurred." So, those are local testimonies that are coming in at this point in time. My colleague Shahid Ansari is with us on the broadcast. शाहिद, हम देख रहे हैं इस वक्त लोकल्स के द्वारा भी कई स्टेटमेंट्स आ रही हैं और सभी कह रहे हैं कि उनको बहुत तेज़ एक्सप्लोजन की आवाज़ आई थी। जो ये आई विटनेस स्टेटमेंट्स और लोकल टेस्टिमनीज हैं, इनके बारे में हमें बताइए। देखिए, जब ये हादसा पेश आया, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले कि जो लोकेशन है ये उत्तरी गोवा में जो है, जो नाइट क्लब है उत्तरी गोवा में जो है पणजी में कुछ यहाँ से 25 किलोमीटर के जो उत्तरी गोवा का जो इलाका है, यहाँ से मेन लोकेशन से भी जो है ये काफी अंदर के हिस्से में है और यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो लोकल ही है ज्यादा करके। अब हादसा जब पेश आया है तो आपको मैं बता दूं कि जो आरपोरा जो गांव टाइप में है, टाउन जैसा है और यहाँ पे बर्चबार रोमियो लैंड जो ये नाम का जो है क्लब रहा है। अच्छा, जब ये हादसा पेश आया है तो आपको मैं बताऊं कि कभी गुमान भी नहीं था, क्योंकि इतना ओपन रहता है और गोवा में आमतौर पर आप देखें कि गोवा की जो लाइफ है, नाइट लाइफ जो है मशहूर है गोवा की, लेकिन हुआ यह है कि यहाँ पे या गोवा में ज्यादा जगहों पर ऐसा हुआ है कि जो फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स है या जो उनके नियम है उन पर तो जो है वो अमल ही नहीं करते। और ये 3 दिन, चूंकि फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिनों जो है ज्यादा भीड़ देखी जाती है और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माहौल था। जब हादसा हुआ है तो उस दौरान अचानक जो है ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की आवाज आई और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते तब तक जो है आग जो है अंदर के लकड़ी और दूसरी चीजों में जो है पकड़कर आग मजीद जो है बढ़ती चली गई। जो लोग यहाँ मौजूद थे वहाँ अफरा तफरी का माहौल था अंदर के हिस्से में और वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है आग जो है पूरी तरह से चूंकि उस कंपाउंड को, उस इलाके को अपनी चपेट में ले ली तो लोग जो है डर के मारे भी जो है बाहर नहीं आ पाए और सफोकेशन इतना ज्यादा था कि जो धुआं था, धुएं की वजह से कई लोग जो है वहाँ बेहोश हो गए। और अच्छा, उनको बचाने के लिए बाहर से जो लोग थे वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि उनको जो है आग इतनी तेज तब तक हो गई कि वो अंदर के हिस्से में आ ही नहीं पा रहे थे। और जब सिलेंडर फटने के बाद जब आग जो है बहुत तेज हुई तो अब तक की देखिए जानकारी जो मिली है इसमें 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इसमें 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ भी शामिल है और 7 जो शव है उनकी अभी भी पहचान नहीं हो पाई है और जो लोग घायल है उनमें से 6 से ज्यादा लोग घायल है, उनका अभी भी इलाज चल रहा है। जबकि दूसरी बात तो बता दूं कि जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है तो उनको लेकर जो है पोस्टमार्टम में डीएनए टेस्ट का जो है सहारा लिया जाएगा और जब जैसे जिसकी शिनाख्त हो जाएगी उनको जो है उनके परिवार के हवाले किया जाएगा। हालांकि इस घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, उसके साथ साथ द्रौपदी मुर्मू ने सभी लोगों ने इस पर जो है शोक व्यक्त किया है। जबकि जो लोग हैं, स्थानीय जो एमएलए हैं, उन्होंने इस बात को लेकर जो है बहुत नाराजगी जाहिर की है और कांग्रेस ने तो जो है गोवा के जो है प्रधानमंत्री है उनके इस्तीफे की मांग की है कि उन कांग्रेस का कहना यह है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की नाकामी है, जिसकी वजह से आप देखिए कि सुरक्षा और साथ साथ जो फायर सेफ्टी के जो नियम है उनकी अनदेखी की गई है और इस अनदेखी की वजह से जो है इतने लोगों की मौत हुई है। नॉर्थ गोवा में आमतौर पर जो है इस तरह के क्लब, होटल्स और पब वगैरह रहते हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में जो सैलानी आते हैं और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माहौल था। अभी जो आपको मैंने पहले जैसे बताया कि जिसमें जिन लोगों की मौत हुई है उनमें तो 4 तो टूरिस्ट थे, जबकि 14 जो यहाँ का खुद का स्टाफ मेंबर था, 7 लोगों की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो यहाँ स्टाफ थे आमतौर पर आसपास के ही लोग थे। इन आसपास के लोगों की वजह से जो है वहाँ के जो एमएलए है वो और ज्यादा नाराज हैं। दूसरी, आग लगने की जो वजह असल और आग बढ़ने की जो वजह रही है वो भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लकड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है।
लकड़ी के इस्तेमाल की वजह से आग को मजीद बढ़ने और पकड़ने में जो है मदद मिली है। चूंकि ये भी जो है एक अहम बात होती है कि जो फायर सेफ्टी के नियमों में ये भी होता है कि आपने किसी भी जगह पे लकड़ी का कितना इस्तेमाल किया है, और ये भी होता है कि आग लग जाने के बाद कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस पर जो है बहुत सख्त होना चाहिए। लेकिन चूंकि गोवा में आमतौर पर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं और जो होटल है, पब है या इस तरह के क्लब हैं, यहाँ पे जो है फायर सेफ्टी के जो नियम है उनकी अनदेखी की जा रही है। और ये जिसकी अनदेखी की सबसे बड़ी वजह ये रही है कि जो 25 लोगों की अब तक मौत हो गई है, उस अनदेखी का ही ये एक हिस्सा है। जी शायद बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। इस वक्त वे ट्रैकिंग सम मोर अपडेट्स नाउ। कांग्रेस लीडर Priyanka Gandhi took to X to condole the loss of lives in the incident. She said, and I quote, "My heart goes out to the families and loved ones of the 23 souls lost in the tragic fire at Arpora, Goa. This is an unimaginable loss. I pray for the speedy recovery of all of those injured. This tragedy demands a thorough investigation, full accountability, and measures to ensure that every safety norm is upheld to avoid such incidents in the future." शाहिद अंसारी कंटिन्यूज टू बी विद अस। शायद हम देख रहे हैं इस वक्त प्रियंका गांधी का भी स्टेटमेंट आ गया है, और ये जो हादसा है इसके कंडोलेंसेस देने के अलावा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी रखी है, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की डिमांड भी रखी है। तो इस वक्त जो ये डिमांड्स उठाई जा रही हैं, जो हम देख रहे हैं स्पेशली ऑपोजिशन के द्वारा, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि 25 लोगों की जो मौत हुई है, इनमें से 3 महिलाएं भी हैं। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरी अहम बात यह है कि इतने लोगों की एक झटके में मौत हो जाती है, इतने पर्यटकों की मौत हो जाती है, लोकल्स जो उसमें रेस्टोरेंट के बेसमेंट में काम कर रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस तरह के हालात जो है, अब इन हालात में तो सत्ताधारी पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष तो है ही है, और इसके पहले भी ये इन लोगों ने जो है जो मांग की है, देखिए आपकी अभी कांग्रेस ने मांग किया है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो इस्तीफा दें। तो इस तरह से अब भाई जाहिर सी बात है कि जो ये हालात हुए हैं और जिस तरह की दिक्कतें पेश आई है, और उसके साथ साथ जो जानी नुकसान हुआ है, कोई 1-2 लोगों का नहीं हुआ है, ये 25 लोगों का जानी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान के बाद जो है एक बात तो तय हो गई है कि गोवा में जो इस तरह के पब हैं, क्लब हैं, होटल्स हैं, जो भी हैं, यहाँ पे फायर सेफ्टी के जो नियम है उनकी कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये इसकी जीती जागती मिसाल है। अब देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जाहिर सी बात है कि अब लोगों में नाराजगी तो है ही है। अब नाराजगी के बाद अब इस नाराजगी की वजह से हर जो है पक्ष के जो लोग हैं वो इस चीज को लेकर जो है इसे सीरियस ले रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है लोग ये मांग कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई तो हो। उसके साथ साथ गोवा के चीफ मिनिस्टर जो है उनको, प्रमोद सावंत, उनको भी जो रिजाइन देना चाहिए। लेकिन बात क्या है कि बात रिजाइन देना और इस मसले का हल नहीं है। बात यह है कि भाई इस तरह के नियम और कानून की धज्जियां जो लोग उड़ा रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई है। हालांकि यहाँ के जो लोकल एमएलए लोगों हैं उन्होंने कहा है कि हम फायर सेफ्टी जो इसका फायर ऑडिट है इसको लेकर हम सभी पूरे गोवा में इस तरह के फायर ऑडिट का जो है वो किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह के हादसे ना हो जिसमें इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह के जो हादसे हुए हैं इस पर पहले से अगर सख्ती बरती जाती तो होते क्या इस तरह के हादसे? तो जवाब नहीं है। अगर जो चीज किसी घटना घट जाने की बात की जाए उससे बेहतर यह है कि नियम और कानून लागू उसी वक्त किए जाए जब से वो नियम और कानून जहाँ पे लागू होता है। तो वो सब चीजें ना होने की वजह से ही ये सारे हादसे हुए हैं। यहाँ पे आपको बताऊं कि जो क्लब है यहाँ लकड़ी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, तो आग को जो है और मजीद बढ़ने और आग को पकड़ने में और मदद मिली है, जिसकी वजह से ये हादसा इतना बड़ा हो गया। जी शायद बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। नाउ वी ऑल्सो हैव विजुअल्स फ्रॉम इनसाइड द बर्च रेस्टोरेंट इन आरपोरा. We can see in those visuals a live band performance while a fire can be seen breaking out in the roof. The band was still playing before the performers started noticing the fire, and you can see in those visuals on your screen the exact spot where the fire broke out at the interior of the club, and it was noticed by the band that was performing at the moment. शाहिद अंसारी इज़ विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। शाहिद, और वीडियोज़ इस वक्त सामने आ रही हैं, और जो जस्ट पहले का वक्त था इस हादसे का वो भी सामने आया है इस वक्त, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो अंदर था, इंटीरियर था क्लब का, उसके छत से ये फायर चालू हो रही थी। तो ये एग्जैक्ट स्पॉट क्या हमें पता है इस वक्त? क्या इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि ये
एग्जैक्ट जो जगह थी जहां पे ये फायर चालू हुई थी, क्या हमें उस बारे में जानकारी है इस वक्त? देखिए, जो हादसा पेश आया था जहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ था, सिलेंडर जो हिस्से में रखा हुआ था उस हिस्से में जब ब्लास्ट हुआ है तो पहले तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि आगे हुआ क्या है। जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट के बाद जो लोग थे वो भागना शुरू किए और उसके बाद जहाँ पे लकड़ी और विंडो और ये सब जहाँ पे रहा है वहाँ पे आग जो है ज्यादा बढ़ने में उसको मदद मिली है। अब कुछ लोग जो है आपको बताएं कि ये भी पता चला है कि बेसमेंट में जो है बेसमेंट में जो है काफी लोग थे और वहां पे भी जो है ये आग आग ने जो है उस इलाके को भी जो है अपनी उस एरिया को भी जो है अपनी चपेट में लिया है। और यहाँ पे जब आग बढ़ी है तो चूंकि बाहर जब लोगों को पता चला कि कुछ हुआ है अंदर, चूंकि तब तक बाहर भी लोगों को मालूम नहीं था कि क्या जो ब्लास्ट हुआ है वो सिलेंडर ब्लास्ट है या आग लग रही। लेकिन जैसे ही बाहर लोगों को पता चला तो वो बाहर भागे। अंदर कैसा है कि घास फूस जैसा है और जो गोवा कल्चर के हिसाब से जो है जो पब और क्लब बनाया जाता है वैसे बना था। तो आग को जो है उसकी वजह से ये सारी चीजें पेट्रोल का काम कर गई और आग जब लगी तो फिर उसके बाद लोग बाहर से मदद करने के लिए भी पहुंचे, लेकिन अंदर के हिस्से में पहुंचने से पहले ही देखे कि आग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, धुआं बहुत ज्यादा था और जो घास फूस जो क्लब में घास नुमा छत बनाई गई थी वो सब में आग लग गई। तो मतलब कि आग जो है बढ़ने में जो है ये सब चीजें बहुत मदद मिली, जिसकी वजह से लोगों को जो है वहां से बचने या भागने का मौका ही नहीं मिल पाया। और यही वजह है कि इतने कम समय में इतने लोग जो है इसकी चपेट में आ गए। 25 लोग की अब तक जो है घायल होने की जो है जानकारी मिली है, जबकि इसमें 4 टूरिस्ट हैं, 14 स्टाफ मेंबर हैं, 7 शव इतने ज्यादा जल गए हैं कि उनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। तो उनका जो है कहा गया है कि पोस्टमार्टम के बाद डीएनए का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग हैं उन लोगों का पुलिस जो है बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है जो वहां मौजूद थे, वॉचमैन से लेके बाकी लोग हैं। जांच अभी शुरू हो गई है और अंदर के हिस्से में जो है जांच एजेंसियां जो है सैंपल कलेक्ट कर रही हैं और जो लोग हैं वहां चश्मदीद हैं उनसे पूछताछ कर रही हैं। जी जी, शायद बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। वी हैव सम मोर अपडेट्स कमिंग इन। वी हैव अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ दिल्ली विजिटर इन गोवा. He stated, and I quote, "As soon as we reached our hostel, we saw plumes of smoke rising. We came here to find out what is happening. Actually, we were planning to come and party here last night, but then we got to know that a big fire broke out." Let's in fact listen in. एक्चुअली हम लोगों की फ़्लाइट कल रात 10:30 बजे की लैंड हुई थी, तो हम अराउंड 12 बजे यहाँ आए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने हॉस्टल पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे कि धुआं काफ़ी ज़्यादा आ रहा है एंड वहाँ कुछ रेडिश ह्यू भी था। तो हम यहाँ पता करने हैं कि क्या हुआ है। एक्चुअली वी वर प्लानिंग टू कम एंड पार्टी हियर एट yesterday night. Yes, but then we got to know that a big fire has taken place out here, so we didn't go. I think there was a DJ party yesterday. I don't know much about. शायद अंसारी कंटिन्यूज टू बी विद अस फॉर मोर डिटेल्स। शायद और भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त जिसमें हम देख रहे हैं कि सभी ये कह रहे हैं कि काफ़ी दूर तक ये जो एक्सप्लोजन थी उसकी आवाज़ आई और ये जो फायर था, जो स्मोक था, वो काफ़ी दूर तक भी दिखाई दे रहा था। तो जो ये स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में आप हमें और क्या बता सकते हैं? देखिए, असल में जो नॉर्थ गोवा का जो ये इलाका है और इस इलाके में जो है इस तरह के पब क्लब और रेस्टोरेंट जो है बड़ी तादाद में हैं। लोग जो है घूमने आते हैं तो यहाँ कई कई दिन जो है स्टे करते हैं और बहुत ही अच्छे इलाकों में इसका शुमार किया जाता है। तो जब यहाँ ये हादसा पेश आया है तो आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग बाहर के हिस्से में थे जो अंदर जा नहीं पाए थे और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि आग लग गई है तो वहां से निकल कर भागे। जबकि बाहर जो लोग मौजूद थे उनको पता चला कि यहाँ कुछ हादसा पेश आया है तो वो मदद की नियत से जो है यहाँ पहुंचे, लेकिन तब तक अंदर के हिस्से में आग बहुत तेज लग गई थी तो अंदर दाखिल होने का मौका ही नहीं मिल पाया। अब जब अंदर दाखिल होने का मौका नहीं मिल पाया तो जाहिर सी बात है कि बचाव के लिए तो कोई होना चाहिए और जो लोग अंदर हैं, जो स्टाफ है, स्टाफ, इन लोगों को भी जो है भागने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जिट गेट ही नहीं था। अब जो लोग बाहर के हिस्से में थे वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास चूंकि आग बुझाने के लिए कोई चीजें थी नहीं या कोई सहूलत नहीं थी। और जो यहाँ ये जो क्लब है, इस क्लब में भी जो है फायर सेफ्टी को लेकर कोई बहुत ज्यादा जो है नियम कायदे पर ये अमल कर नहीं रहे थे और ना इनके पास जो है आग बुझाने का कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह था।
थोड़ी देर बाद जब फायर कर्मी यहाँ पहुंचे तो फिर उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि आग तब तक जो है पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले चुकी थी, तो उनसे जितना जैसा हो सका 3 से 4 घंटे तक मेहनत किया, फिर उसके बाद आग पर काबू पाए। अंदर के हिस्से में जो फंसे थे उनको निकाला गया, बचाकर कोशिश ये की है कि उनको जो है बचा लिया जाए। लेकिन आपको बताऊं कि इतनी बुरी तरह से जो शव थे वो जल गए थे और इतने ज्यादा हालत खराब थी, अंदर अफरा तफरी का माहौल था। कई शव तो 7 शव ऐसे हैं जो पहचान नहीं पा रहे, तो उनके लिए डीएनए का सैंपल लेकर फिर उनके परिवार के हवाले किया जाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वगैरह पूरी की जा रही है गोवा मेडिकल कॉलेज में। अब अहम सवाल यही है कि इतना सब कुछ हो गया है, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या एजेंसियां होंगी या जो सरकार है वो इस पर अपनी जवाबदेही करेगी, या जिस तरह से कांग्रेस ने मांग की है कि गोवा में नियम की अनदेखी बहुत ज्यादा की जा रही है, और दूसरी तरफ जो एमएलए लोगों हैं स्थानीय की, उन्होंने फायर ऑडिट की बात कही। ये सारी चीजें हैं अब ये इनके बाद, लेकिन जो हादसा है वो हो ही गया है। अब आने वाले समय में इस तरह के हादसे ना हो, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी शायद बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। नाउ वी हैव अ मेजर अपडेट कमिंग इन। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द Burj by Romeo Lane nightclub in Goa was operating on the borderlines of the law. Constructed on what was once a salt pan, the nightclub was issued demolition notices by both the local village panchayat and the Goa Coastal Zone Management Authority. However, the demolition notice was stayed by the Directorate of Panchayats on appeal, allowing the nightclub to continue to operate. My colleague Shahid continues to be with us on the broadcast. शायद हमें पता जो जानकारी मिल रही है इस वक्त की 2 डेमोलिशन नोटिसेस भी जारी की गई थी इस नाइट क्लब के अगेंस्ट। इस बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है, ये क्यों जारी की गई थी और इन पे जो स्टे लगाया गया था उसके पीछे क्या वजह थी? जी देखिए, जो जानकारी मिली है उस जानकारी में कार्रवाई सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई जगहों पर गोवा की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के लिए नोटिस जारी की गई थी। वजह ये थी कि यहाँ पे जो है इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था और उसके साथ साथ जो अल्ट्रेशन और इसके साथ इंटीरियर जो चीजें की गई थी, इसको लेकर प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही थी। यहाँ पे जो है नोटिस इशू किए गए थे, लेकिन हैरानी इस बात की है कि उसके बाद भी जो क्लब है उसे जो है बहुत ही मतलब की बेफिक्री से चलाया जा रहा था। यही नहीं कि कार्रवाई के लिए जब उनको नोटिस दी गई है तो उस नोटिस पर भी जो है उन्होंने कोई बहुत ज्यादा उसे सीरियस नहीं लिया था, ना ही उन्होंने इस पर कोई जवाब दिया था। जबकि प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई थी कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन तब तक जो है इनकी तरफ से सारी चीजें की ही जा रही थी, इंटीरियर से लेकर अंदर के जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, और क्योंकि पीछे के हिस्से में एग्जिट गेट नहीं था और जिस तरह से लोग यहाँ पे आके रुकते हैं और जो एरिया है यहाँ पे फायर सेफ्टी के जो है नियम है उस पर ये पूरी तरह से अमल नहीं किए थे। तो ये बहुत सारी चीजें थी, इसको लेकर प्रशासन ने नोटिस तो दिया था, लेकिन अहम बात यही है कि इन्होंने इस पर कितना अमल किया या प्रशासन सिर्फ क्या जिम्मेदारी नोटिस देकर शांत हो जाने की है? नहीं, जवाब यह है कि भाई प्रशासन अगर इस पर नोटिस दी थी, प्रशासन की यह जिम्मेदारी थी कि वो इस पर सख्ती करती और इसको जो है पूरी तरह से बंद करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। प्रशासन ने इसको जो है नोटिस तो दे दी, अपनी खाना पूरी भी कर ली, लेकिन बावजूद उसके ये क्लब जो है चलाया जा रहा था। और आज यही वजह रही है कि अपने लोग इसके मौत के मुंह में चले गए और अब जो है यहाँ पे कार्रवाई की बात की जा रही है। जी शायद बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विद ऑल ऑफ दोस डिटेल्स, एंड विल कंटिन्यू टू कीप अ क्लोज ट्रैक on all developments, but let's slip into a very short break.